Okay, so we will be discussing these questions today. Especially this one, this is already done, so I will not be discussing this. We have covered this in the assignment one, I guess. So these are the 5 questions that we will be discussing one by one. So in the first question, it is written that input consists of two integers, and you have to get the first integer as the number of students, and the second integer is the number of teams. Nothing to do in this, just the two inputs need to be taken from the user. So input means that you have to get the scanf for the two integers, and then you have to just print that number of students kitne hai and number of teams, how many are they. So let me open the online C compiler and share my screen with you. Okay, so coming to the compiler, this is my compiler. The first question says that I have to get the inputs of two numbers, and those two numbers are going to be the number of students and the number of teams. Hash include stdio.h. Int main, getting the numbers as int a and b, or maybe you can write it as students, and the other one was the number of teams, so I will keep it as teams. Now two things have to be scanned. We can also write this thing, print f, enter the number of students, right? So if I do this, I will be asked about input of the number of students. I can do it by writing this, and the same thing can be done for number of teams. So enter the number of teams. काफी आसान था ये, not an issue to understand this, and it is very simple also. So, but now scanf needs this ampersand sign also, because we are trying to save these values in the RAM, and RAM may address we have to get, that address can be only accessed through this ampersand sign. So now the final output will be printf. I will also put the new line here, because after that new line to chahiye. So this time I will be writing the students are the number of students are %d, and number of teams are %d, then students comma teams. आसान है, ये वाला हो जाएगा. That's all in this. In the end, I can write return 0. Now if I go ahead and run this program, the question will be solved. So enter number of students, let it be 20. Teams, let it be 10, 2 students per team. So the final answer is this: the number of students are 20 and number of teams are 10. So that was the first question, very simple one. If you have a doubt in this, you can ask. It's done from my side. Any doubt in this? No, sir. Okay, good. Now coming to the next question, write a C program to find the whether number is even or odd using the bitwise AND operator. So earlier we were doing the even odd calculation based on %, the modulus symbol. So now if I want to check if my number is even or odd, I have to first get the scanf, and I will say enter the number also. So printf, enter the number. So scanf will do this %d %n. So this is my n. Now, can you tell me, can anyone have, if you have a idea that how that bitwise AND operator works, can you tell me that what should I write in this condition, and then I can do this thing, printf even number or the odd number. So what should I write here? Yes.
एन Yeah. परसेंट मॉडुलस 2 एक सर सेकंड इफ एन फिर इवन होगा। So you people are saying I can write it as n mod 2 equal to 0, and this will be fine, right? ये सबको आता है? If it is divisible by 2 and the remainder is 0, it means it is a even number, else it is a odd number. यस ये सबको आता है हमें, ठीक है? हम कोई भी नंबर डालेंगे अब. Let's say I put the number as 10, the output is even number. If I run this again and if I input the value as 5, the output is the odd number. But we are told in this question that we should use only the ampersand sign, this one, and not the modulus sign. So using this bitwise ampersand operator, can anyone tell me what should I write in this code? Where should I make the change? Obviously, it has to be here, right? The change has to be done here. What should I do? बताओ जी. So let me explain to you first that how does this thing work. Just 1 second. So I'm unable to do the मॉडलिस की जगह एम्फेसेंट डाल सकते हैं। मॉडुलस की जगह एम्परसेंट डाल दोगे तो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ. अगर इसको सर हाँ, क्योंकि अगर इवन के साथ करेंगे देन लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और वो बेस 2 से ही करता है, बाइनरी में ही करेगा। ऐसा तो नहीं है. जस्ट गिव मी 1 second. I will open the one note. I will write in the note and I will explain you how it works. So coming to the notebook, 1 second. हाँ, I hope you can see the screen now. So आपने एक चीज तो अच्छी पकड़ी है कि इवन नंबर के एंड में 0 होता है. अगर हम 2 देखें तो 2 is 100, 4 is 100, 6 is 110, 8 is 1000. तो ये तो फिक्स है कि हर बार आपका आखिरी वाला डिजिट 0 ही आएगा, ठीक है? ये वाला सिर्फ फर्स्ट डिजिट. तो इवन नंबर में वी ऑल्सो नो दैट इन ऑड नंबर क्या होता है? जैसे 1 इज दिस, 3 इज दिस, 5 इज दिस, 7 इज दिस, 9 इज दिस. तो यू विल सी दैट ये वाला फर्स्ट डिजिट है जो हमेशा 1 है. सो कैन आई वन वन थिंग दैट वट एवर द नंबर बी, मैं अगर उसको एम्परसेंट 1 कर दूं, एम्परसेंट 1 करूंगा तो क्या हो रहा है? देखो, अगर तो मेरा वो इवन नंबर हुआ, लेट्स से 10, इसको मैंने एम्परसेंट 1 किया, तो 1 और 0 को एंड करने पे क्या आता है? इसको एंड गेट वाला इमेजिन करो. अगर आपके पास एंड गेट गिवन है, एंड गेट का टेबल क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? ए बी 00011011. नाउ इफ आई से ए एम्परसेंट बी, हम बिटवाइज लेवल पे एंड कर रहे हैं, ये मेरा एंड गेट है, ठीक है? सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ 0 and 0? 0, It will be 0, 0 and 1, 0. again 0, again 0, and last time 1. अगर दोनों 1 है तभी आंसर 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा. इतना सबको क्लियर है? So my output is 0 in this case. It means that if I do the ampersand 1 with a number, अगर वो equal to 0 आ रहा है, it means it is a even number, else it is a odd number. Why else odd number? क्योंकि अगर आप 1 को ampersand 1 करोगे तो आंसर 1 आएगा. 0 का तो 0 आएगा, 1 का 1 आएगा, तो आंसर इज 1. सिमिलरली अगर आप सपोज 7 को करते हो 0 1 1 एम्परसेंट 1, तो बाकी तो सारे 0 हैं, 0 0 0 1 है ये, तो ये वाला 0 0 0 1 आउटपुट आ जाएगा, तो आंसर इस फिर से 1. तो अगर आपका इक्वल टू 0 आ रहा है तो इट इज ए इवन नंबर, अगर वो इक्वल टू 1 आ रहा है इट इज ए ऑड नंबर. ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अगर किसी ने यहाँ पे 0 के बजाय सोचा कि मैं 1 लिख दूं,
तो फिर आपको ये इवन ऑड को ऊपर नीचे करना पड़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑड है, तो इन दैट केस यू हैव टू टेक केयर ऑफ। सो कमिंग बैक टू द कोड, what I will do is I will write it as n %1 equal to 0। अगर वो एंड करने पे 0 आ रहा है इट मीन्स इट इज ए इवन नंबर, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, लेट्स से, नहीं अभी एरर आएगा, सो आई विल स्टॉप इट। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, ये ना अगर मैं m% और 1 के को मतलब मैं इसको ब्रैकेट में नहीं डालता तो वो इसको पहले एंड नहीं करेगा, इंस्टेड वो क्या करेगा, अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं वो 1 इक्वल टू 0 चेक करेगा पहले, क्योंकि वो राइट साइड से चलता आएगा। तो डबल इक्वल टू पहले रन होगा m% से, तो 1 डबल इक्वल टू 0 विल बी ऑलवेज फॉल्स। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं डाले, अगर मैं अब यहाँ पे कोई भी नंबर डालूंगा तो आउटपुट विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑड नंबर। 5 डाला तब भी ऑड नंबर आएगा, अगर मैंने यहाँ पे अब 2 डाला जो मुझे पता कि 1 है फिर भी ऑड नंबर आएगा, क्योंकि वो 1 इक्वल टू 0 वाली चीज को उसने फॉल्स कर दिया। एंड व्हेन यू एंड योर नंबर विद एनी जीरो, मतलब जब हमने एंड ही लगा दिया और जीरो के साथ एंड कर दिया तो आंसर आपका ओवरऑल जीरो ही आएगा, तो इसलिए हमेशा वो फॉल्स होकर इधर जा रहा है। बट देन इफ आई ऐड ए ब्रैकेट हियर, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया तो पहले एंड होगा उसके बाद वो चेक होगा कि वो इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। नाउ इट विल रन फाइन इफ आई पुट ए नंबर है 5, 5 विल बी ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ या कोई इवन नंबर और डालता हूँ इट विल बी इवन नंबर। सो इज इट क्लियर क्या हुआ इसमें, कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? Yes, sir. If you have a doubt you can ask. Someone may also do this, इक्वल टू 1 कर दिया, तब आप यहाँ पे इन दोनों को उल्टा कर दोगे, बस यहाँ पे ऑड आ जाएगा और यहाँ नीचे आपका इवन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक और चीज है देखने वाली, अगर मैं यहाँ पे सपोज ये इक्वल टू 1 नहीं डालता, अब बताओ क्या होगा? कैन एनीवन टेल व्हाट विल हैपन नाउ? सर रिपीट करना। इक्वल टू 0 हटा दिया इफ में से, अब क्या होगा? सर वो हमेशा ऑड नंबर दिखाएगा। नहीं हमेशा सर अभी भी सही चलेगा। अभी भी सही चलेगा। एक जना कह रहा है कि हमेशा ऑड आएगा, एक कह रहा है अभी सही चलेगा। तो इसमें देखो n m%1 कुछ भी आप करोगे तो आपका आंसर इवन वाले पे 0 आएगा, अगर आप ऑड नंबर के साथ एंड 1 करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने इक्वल टू 0 नहीं भी डाला, इक्वल टू 1 नहीं भी डाला, n m%1 मेरे को 1 रिटर्न कर रहा है इन केस इट इज ए ऑड नंबर। यस और नो? यस। यस सर। इसका मतलब, यस सर। इसका मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पे इफ 1 लिख रहा हूँ, 1 तो ऑलवेज ट्रू होता है, 1 का मतलब ही ट्रू है, ठीक है। जैसे हम वो रिटर्न 0 रिटर्न 1 करते थे, तो वो रिटर्न 0 रिटर्न 1 अलग चीज थी, बट व्हेन वी आर चेकिंग द कंडीशंस, यहाँ पे जो मेरा 1 है वो ट्रू है, अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो वो फॉल्स है, ठीक है, कंडीशंस के अंदर, क्योंकि अब ये कंडीशन है, इफ के अंदर कंडीशन चेक हो रही है। सो नाउ इफ n m%1 इज गिविंग मी 1, इसका मतलब वो ऑड नंबर है तो वो ठीक चलेगा, और अगर ये 0 होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, तो अभी भी ये ठीक चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। यू विल चेक, यहाँ पे 7 डालोगे तो ये ऑड नंबर दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे कोई इवन नंबर दोगे, लेट्स से 200, इट इज गिविंग मी द इवन नंबर, आउटपुट अभी भी ठीक आ रहा है, इक्वल टू 0 1 लिखने का कोई इशू ही नहीं है, ये भी चलेगा। इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क। Any doubt? No, sir. Great. Coming back to the questions, this one is over. Now, can anyone tell me how to find the greatest of three numbers using the ternary operator?
टर्नरी ऑपरेटर पहले बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब है, जैसे मैंने बोला, इफ I mod 2 equal to 0, printf even, else printf odd, ठीक है। ऐसे कुछ हम लिखते होते हैं, ये कोट्स वगैरह सेमीकोलन वगैरह अपने आप लगाया करो। अगर हमने ऐसे कर दिया, ये हो गया मेरा if else, बट द सेम थिंग कैन बी डन थ्रू वन मोर ऑपरेटर। अगर आप ये करो I mod 2 equal to 0 क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये पूरी स्टेटमेंट है सेम है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया मतलब आप उसको चेक कर रहे हो। कॉपी दिस थिंग एज इट इज यहाँ पे विदाउट द सेमीकोलन। सेमीकोलन कॉपी नहीं करना, क्योंकि सेमीकोलन लगाया तो वो खत्म ही कर देगा, रूल है। सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट। देन यू कैन पुट द कॉलन हियर, ठीक है, एंड देन कॉपी दिस थिंग एज इट इज, क्योंकि अब सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा एंड में। सेमीकोलन लगा के खत्म करना है तो उसको आखिरी वाले को एज इट इज लिख सकते हो। तो इतना बड़ा जो ये मैंने 4 लाइन में लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। I can write it as I mod 2 equal to 0 question mark printf even colon printf odd, ठीक है जी। ये सिंगल लाइन is equivalent to these 4 lines of code and this is called ternary operator। ternary का मतलब है 3 चीजें यूज हो रही हैं इसमें, 3 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। एंड इसका नाम आया कहाँ से ऑपरेटर का, थर्ड, जैसे टर्नरी ऑपरेटर है ऐसे ही एक यूनरी ऑपरेटर होते हैं, एक बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, एंड सिमिलरली थर्ड है ये वाला टर्नरी। ये नाम यहाँ से आया कि हमने अगर कोई प्लस करना है तो हम a प्लस बी करते हैं, माइनस करना है तो हम a माइनस बी करते हैं। तो ऑपरेटर मेरा एक है पर ऑपरेंड मेरे 2 हैं, इसको ऑपरेंड कहते हैं। a एंड b आर द 2 ऑपरेंड्स। अगर मेरे 2 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। अगर मेरे 3 ऑपरेंड यूज हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे हुआ था, तो ये मेरा ऑपरेंड 1 था, ये वाला ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 3। अगर 3 पार्ट्स हैं जिनके ऊपर काम हो रहा है तो वो मेरा टर्नरी ऑपरेटर है। सिमिलरली इफ आई हैव ओनली वन ऑपरेंड, लेट्स से a प्लस प्लस या प्लस प्लस a या a माइनस माइनस या माइनस माइनस a, इन दिस आई एम ओनली वर्किंग ऑन सिंगल ऑपरेंड, हर बार a है। दिस इज माई यूनरी ऑपरेटर, ठीक है जी। एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके, सो टर्नरी का मतलब समझ में आ गया एंड वी कैन सी द कोड नाउ। सेम थिंग मैं करता हूँ, लेट्स से मेरा n आ गया। अब मुझे इवन और चेक करना है। आई विल कन्वर्ट दिस थिंग एज इट इज। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, printf को ऊपर बुलाता हूँ, ये हटाना पड़ेगा, सेमीकोलन लगा दिया तो वहीं पे बात खत्म, इसलिए मुझे खत्म नहीं करना। इनफैक्ट आई हैव टू कंटिन्यू विद द थर्ड ऑपरेंड, printf this। अगर आप ये सिंगल लाइन कोड लिख दोगे यहाँ पे, आंसर आपका फिर भी ठीक आएगा। लेट्स रन इट फॉर 1 second। आई विल कॉपी दिस, paste, now run, put a number odd, put a number even, program is running still fine। Any doubt in this? No, sir. Now can you make the greatest of 3 numbers using this technique? This was the question. You have to find the greatest of 3 numbers using the ternary operator, right? So now if you want to find the greatest of 3 numbers, let's try to make it. Can anyone tell what should I do? I should get 3 numbers as the input. This is a basic thing. Enter the numbers. Sir, can we do nesting in ternary operator? Let's see.
लेट्स सी कैसे करना है, ठीक है। टर्नरी के अंदर टर्नरी एक और डाल सकते हो, इन दैट वे नेस्टिंग कैन बी डन, ठीक है। अब जैसे मैंने एक ये कंडीशन यहाँ पे डाला और यहाँ पे मैं अगला कंडीशन यहाँ पे डाल दूँ तो ये चलेगा। अगर मैंने समथिंग समथिंग लिखा, चेक किया, फिर कुछ काम करवाया, फिर ये किया, फिर ये काम किया, तो दिस टर्नरी ऑपरेटर जिसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फर्स्ट टर्नरी, ठीक है। मतलब टर्नरी के अंदर टर्नरी के थ्रू हम नेस्टेड कर सकते हैं, यस। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, let's try to solve this thing through the ternary operator। 3 नंबर लेने हैं जी, A B C, A B C। Okay, so what should I write here? Should I check A greater than B? And if A is greater than B, I should also check if A is greater than C, ठीक है जी। अगर मैंने ये किया, it means my A is greatest, printf A। समझो इसको क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने बोला A B से बड़ा है, अगर है तो मैंने बोला अच्छा A C से भी बड़ा है। अगर A B और C दोनों से बड़ा है तो जस्ट गो अहेड विद प्रिंटिंग ऑफ आंसर एज A। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड प्रिंट द आंसर एज C, क्योंकि अगर A B से बड़ा है पर A C से छोटा है तो आई विल से प्रिंट ऑफ C, ठीक है। अब अगर मेरा A B से बड़ा होता ही ना, अगर B बड़ा होता तो ये वाली चीज सारी हम उधर शिफ्ट कर देंगे विद दिस assumption दैट A B से छोटा है, तो इसका मतलब B बड़ा है। तो in that case maybe I can say if my B is greater than C, the answer is B, else the answer is C। इसको समझो, इस पूरी स्टेटमेंट को। इजी है, इतना कोई टफ नहीं है ये। दिस इज माई ट्रू पार्ट, इतना, एंड इस कॉलन के बाद राइट हैंड साइड वाला इज माई एल्स पार्ट। समझ में आ रहा हुआ क्या है? इसको मैं समझाता हूँ, पहले एक बार हम फटाफट इसको चेक कर लें, अगर मेरा आंसर ठीक है तो फिर मैं समझाता हूँ इसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनपुट दिया 3 4 5, आंसर इज 5। अब यहाँ पे ना हमने ये नहीं किया कि मतलब ए कौन है बी कौन है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए इज ग्रेटेस्ट, rather than printing the values of these things we can print this, print A, print B, print C। तो उससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना भी। प्रिंट B नहीं, प्रिंट B नहीं आएगा यहाँ पे, प्रिंट C आएगा इस केस में। यहाँ पे आएगा जी प्रिंट B, प्रिंट C, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड नाउ, दोबारा कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 7 4 and 9, तो इस केस में C इज ग्रेटेस्ट, ठीक है, ठीक आ रहा है ये। अब ऑब्वियसली मैंने अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन चेक नहीं करी कि मेरे 2 नंबर सेम है, तो वो वाली चीज़ें नहीं डाली यहाँ पे, बट एक सिंपलेस्ट टेक्निक ये लगाई है दैट वी गेट द वर्क डन इजीली। आउट ऑफ 4 7 and 1 B is the greatest, so it is working। Can anyone explain me what I have written here for others? Anyone out of you? हाँ जी, क्विकली। सर फ्लो चार्ट ही ड्रॉ कर दो ना, वन मोर। ओके,
सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ पे नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू बनाता हूँ पहले, फिर हम उसको ऊपर रिलेट करेंगे फ्लो चार्ट की बजाय इफ एल्स, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इसके अंदर मैं एक और इफ लगाता हूँ, इफ के अंदर इफ ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी, इफ दिस इज द केस प्रिंट इफ ए, ठीक है, मतलब ए विनर है। अगर ये मेरा ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब ए बी से तो बड़ा था पर ए सी से छोटा है, इसका मतलब मेरा बड़ा वाला नंबर है सी, द ग्रेटेस्ट नंबर इज सी आउट ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। अब नाउ बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड ए ग्रेटर देन बी वाला केस, इफ दिस कंडीशन फेल्स, इफ ए ग्रेटर देन बी वाला अगर कंडीशन फेल हो जाए, then I will write the else part, and in else part I will handle the second thing। मतलब ये है कि अगर ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बी बड़ा है, तो आई कैन से आई विल चेक बी, इफ बी इज ग्रेटर देन सी आंसर विल बी बी, बट अगर बी सी से बड़ा नहीं हुआ देन आंसर विल बी सी। इतनी सारी लाइंस हैं जो हमारी नंबर 8 से लेके नंबर 21 तक, हमने इनको सबको छोटा करके एक सिंगल लाइन में लिख दिया बिकॉज ऑफ दिस टर्नरी ऑपरेटर। अगर मैं अब इस कोड को रन करूंगा, जो कि बहुत आसान है समझना, आई होप सबको समझ आ भी गया हो, एंड इफ आई गिव द इनपुट्स सेम दूंगा 4 7 एंड 1, ठीक है, दोबारा करते हैं रन और 4 7 1 देते हैं, 4 7 1, आउटपुट अभी भी बी आ रहा है। सो यू कैन सी द पावर ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। what we have done is we have converted these number of statements into a single line using the ternary operator. Someone raised the hand, Pulkit, yes। यस सर। सर जो हमने टर्नरी ऑपरेटर से एक्सप्रेशन लिखा है उसमें हम इक्वल्स वाला केस कंसीडर नहीं कर रहे, जबकि हमने जो इफ एल्स वाला केस लिखा है उसमें जो एल्स स्टेटमेंट है उसमें ऑटोमेटिकली जीरो वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा, मतलब इक्वल्स वाला केस भी इंक्लूड हो जाएगा। अगर इसमें हो जाएगा तो इसमें भी हो जाएगा, एग्जैक्टली exactly वही चीज लिखी है जो मैंने यहाँ 7th लाइन में लिखा है। 7th लाइन कोड, इसी कोड को मैंने इफ एल्स में कन्वर्ट करा है एज इट इज। सर एक बार इक्वल्स वाला केस इलेबोरेट कर दोगे? इक्वल मैंने यहाँ पे चेक ही नहीं करा अपने एंड से, तो मैंने सिर्फ यही चेक किया कि बड़ा है नंबर, अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो इसका मतलब ए ग्रेटेस्ट है। लेकिन अगर मेरा ए बी से बड़ा है बट देन ए सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब सी ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ए ने बी को हराया, इसको ऐसे देख लो, ए को बी ने हराया और अंदर आ गया वो अपने नेक्स्ट मैच के लिए, और यहाँ पे आके सी से हार गया, तो इसका मतलब सी जीत गया, यस और नो। एंड सिमिलरली अगर ए मेरा बी से हार गया तो अब चेक करेंगे कि बी ने सी को हरा दिया, अगर हरा दिया विनर इज बी, एल्स विनर इज सी, सिंपल है। और अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो? इस केस में अभी मैंने इक्वल चेक ही नहीं करा, ठीक है। इस केस में हम बी और ए को भी चेक नहीं कर रहे। इसको अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए अपने एंड पे करना चाहते हो, यू कैन डू दैट काइंड ऑफ इक्वलिटी चेक ऑल्सो। इस कोड को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना पड़ेगा इफ आई एम चेकिंग ऑल द केसेस के ए बी सी तीनों इक्वल आ गए तो फिर ये आउटपुट आना चाहिए, या ए और बी इक्वल है, सी छोटा है या बड़ा है, तो फिर उस हिसाब से आंसर आएगा। अगर मेरा बी और सी इक्वल है पर वो ए से दोनों बड़े हैं तो दोनों में से कुछ भी प्रिंट करवा दो, वो ठीक आंसर है। तो देर आर मेनी वेरिएशंस, द ओनली एजेंडा हेयर वाज टू मेक यू understand the use of ternary operator, and that ternary operator that we have used in line number 7 has been expanded into these number of 14 statements। हाँ जी, if you have a doubt in this ternary operator, keeping aside the equality check, you can ask। This code has been made with the assumption that all the numbers are different, all three numbers are different। equality वाला केस नहीं हैंडल कर रहे, वो अपने एंड पे आप कर सकते हो चेक अगर उसकी कोडिंग करनी है। अगर आपको किसी को इस चीज में डाउट है दैट हाउ आई हैव रिटन दिस 7th लाइन, तो आप अभी पूछ सकते हो। दिस 7th लाइन इज इक्विवेलेंट टू all the statements after this before
return 0. Any doubt in this? Anyone? No, sir. Okay. Let's move to the next code. The question is simple. You have to find the midpoint for these numbers x1, y1, x2, y2. You have to find the midpoint of the line. Okay. So coming to the code, I have to input two numbers, right? दो नंबर ले लेते हैं x1, y1 and x2, y2. x1, y1, x2, y2, and midpoint, let it be x and y. Let me do the input of the four values in this x1, y1, x2, y2. ठीक है, ये नंबर इनपुट करवाते हैं यूजर से. That can be done by this %d, 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 and it will be m% of x1, comma m% of x2. पहले y2, पहले y1 आएगा. Then I can do it for the number 2. The values will be like this. Okay. Now try to do it on your end. I will give you 1 or 2 minutes. Do it on your end. What to do next? सर एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा दें. हाँ जी, what will I do? बताओ यहाँ पे क्या कोड लिखें? After getting both the numbers. सर ऐसे हम x इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, फिर printf करके उन दोनों की Yes. So x equal to क्या आएगा? x1 plus x2 by 2, right? यही आएगा ना? यस सर. बस इतने करना था, एक दो लाइनें लिखनी थी और अपना काम हो जाएगा. So you can do the same for y, y1 plus y2 by 2, and you can simply write the statement now. Printf midpoint of x1 comma y1 and x1 ऐसे नहीं आएगा, यहाँ %d आएगा, %d and %d, and the second pair is the third pair. सर एक्स वाई को डिफाइन अगर मैं ऐसे कर दूँ, फ्लोट कर दूँ इनको, और इनमें से एक एक को फ्लोट कर देते हैं, सो दैट जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो पॉइंट्स वाली चीज़ को पिक कर ले, अगर पॉइंट्स आ भी रहे हैं बीच में.
is %f and %f. ठीक है, तो अब 6 वैल्यूज देने हैं यहाँ पे, x1 y1 x2 y2 and xy. Let's run it. So if I give the value of x1 y1 as 0 0, ठीक है, origin, और x2 y2 को हम ले लेते हैं 4 and 6, तो the output is 2 and 3. I hope you can make this thing. अपने end पे आपको समझ आ रहा होगा. And I am going to make this limitation of single decimal place. So if I run this again, 0 0 and 4 6 or maybe 4 8, उस हिसाब से आपका output will be in front of you. हाँ जी, do you people have a doubt in this? Easy था? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So coming to the next सर one. जो Yes. आप वर्ड फाइल से हमें क्वेश्चन दिखा रहे हो वो आप शेयर कर सकते हो। वर्ड फाइल आप या आप हमें दिखा रहे हो ये शेयर कर सकते हो। You can take a screenshot. You can take a screenshot right now. These questions will be with you then. Okay. Yes, sir. Because I'm not sharing this file because इसमें ना बहुत सारे और भी हैं, मतलब ये पूरा एंड तक ही है, शायद हर तरह के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं हमने फाइल्स में. So I'm not sharing this file right now with you, but I will share it with the GR later on. At least इतना part मैं copy paste करके आपको GR को भेज दूंगा. That can be done. Okay. So now coming to this thing, simulate the Celsius to Fahrenheit converter. So this is an easy one. It can be done easily, quickly. Celsius to Fahrenheit converter. Let's do it. Let's say my C and F values, let it be float because the calculation may be in points. So now what should I do? I should get the value of Celsius as the input, right? So scanf %f %c. What will be the Fahrenheit equivalent? Anyone? It will be 1.8 into C plus 32. ये सबको आता होगा. Then you can just printf the equivalent Fahrenheit of Celsius is %f. This is the thing. That's all. कुछ भी आप input करोगे, let's say Celsius -40. The answer is -40 only in this particular case. But if you run it, let's say Fahrenheit में 98.4, the output is Celsius. Okay, I gave 98.4 Celsius as the input. So the input was of Celsius, and also I want to limit it to 1 decimal place. Let's run it for 36.9 Celsius. That's the human body temperature, 98.4. ठीक है जी, हो जाएगा ये, easy है. If you people have doubt in this, you can ask. Otherwise, there is nothing that is challenging in this. Anyone? No problem. Okay. So, if you people have doubts in the previous work that we have already covered in the first 2 labs also, that you can also ask. Otherwise, all the basic questions that I wanted to discuss in this, we have covered. Let's do it from these questions also, the basic questions of fundamentals. You can write the algorithm to find the maximum amount of maximum among 3 numbers. So can you make the algorithm out of it?
You must have studied about the algorithm and flowcharts in class, right? No, sir. No? Not yet. Okay, so whenever that algorithm flowcharts and everything will be covered in class, try to solve these questions on your end. I will share the fundamental questions as well as the IO statements questions with the GR today. GR can drop me an email. I will reply back with these questions to you people. Okay, so let's find something that is challenging. Rearrange the following symbols in a flowchart. So we will not talk about the flowchart, but still I can make this program. Let's say you are said that you should find the sum of digits of a given number. Can you do that for me? Find the sum of digits of a given number. सर सर हमें इसके लिए क्या चीज लूप्स यूज करना करनी है? पड़ेगा ना? देखते हैं क्या करते हैं. So we have to find the sum of a given number. हाँ जी, क्या कर सकते हैं इसमें? क्वेश्चन ये है कि आपको लेट्स से नंबर इज गिवन नंबर इज लेट्स से 123. ठीक है, तो आपका आउटपुट 6 आना चाहिए बिकॉज 1 + 2 + 3 = 6. दैट्स द सर क्वेश्चन. या तो मॉडुलस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल हम्म. बेसिक करना हो तो मॉडुलस यूज कर सकते हैं। सो लेट्स डू वन थिंग. वैसे तो इसमें लूप यूज होगा. आप लोगों को लूप करवा दिया शुरू? फॉर लूप, व्हाइल लूप शुरू हुआ? नो सर। till Thanks, what sir. point till what point you have been taught in class? So scanf and printf. Scanf, printf, Sir, that's it? declaration. Declaration. And what about the variables, naming convention, the other things also, Yes, sir. keywords? वो भी हो हो गया वो भी Yes. हो गया होगा. लाइफ साइकिल ऑफ सी प्रोग्राम भी हो गया होगा, है ना? सर, उसी पे रुका। अच्छा, उसी पे हो. कंपाइलर, असेंबली, वो सब अभी उसमें पढ़ा रहे होंगे. ठीक है. ओके, सो what program can we make now? Should सर, I? आप ही सिखा दो while ना। loop का यूज कर। सर, हाँ आप जी, ही लूप सिखा दो। लूप सिखा दूं? चलो लूप डिस्कस कर लेते हैं. कमिंग टू द वन नोट. अब देखो, हमने अभी तक क्या करा है. हमने, अगर हम where is the pen यार? पेन तो यहाँ पे ठीक है, बाय डिफॉल्ट है. चेंज द कलर टू रेड. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट लूप्स. देखो, अगर आपको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट करवानी है, हाउ विल यू डू इट विदाउट लूप्स? You will write printf for each statement. printf लिखोगे 1 new line, 2 new line, 3 new line, 4 new line. या तो आप ऐसे चलते जाओगे, ठीक है, या फिर आप उसको printf करके you can also write it as 1 new line, खत्म किया, फिर से printf करा 2 new line. तो ऐसे करके तो आपको बहुत सारे printf लगाने पड़ जाएंगे, या फिर बहुत लंबा printf लगाना पड़ जाएगा. या तो आप ये ऐसे करके पूरा 100 तक ले जाओ, या फिर आप 1 बाय 1 नीचे तक 100 तक ले आओ, 100 बार printf लिख लो. तो इज देयर अ स्मार्ट वे टू डू इट? द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज इन लूप्स. लूप का मतलब है किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं कि किसी सॉन्ग को लूप पे सुनना, बार बार वही चीज करी जाना. तो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल यूज फॉर लूप. फॉर लूप बड़ी अच्छी चीज है. इसमें करना क्या है, इसमें 3 हिस्से होते हैं. सेमीकोलन 2 बार आएगा इसमें, ये फिक्स है. इसमें 3 स्टेटमेंट लिखने हैं, ठीक है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन. द सेकंड पार्ट इज द कंडीशन. आप कंडीशन चेक करोगे एक, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई, फिर आप अंदर आके जो मर्जी करवाओ. और जब ये खत्म होगा, लेट्स से आपके पास यहाँ 4-5 स्टेटमेंट थे, वो खत्म होंगे, वो वापस यहाँ पे जाएंगे, और इस पॉइंट पे आपका होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द नंबर. आपको मैं आइडिया देता हूँ एग्जाम्पल देके. फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1 से 100 प्रिंट करवाना है. एक तो टेक्निक है कि आप ऐसे करो, इंट i = 1 बाहर लिख लो, और उसके बाद फॉर लूप चलाओ i =
यहाँ पे आप i इक्वल टू 1 ऑलरेडी कर रखे हो, तो यहाँ पे सिर्फ i भी छोड़ दोगे तो चलेगा, ठीक है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, i लेस देन इक्वल टू 100 जब तक नहीं होता तब तक i प्लस प्लस एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ i, printf %d न्यू लाइन i, दिस विल गेट द वर्क डन। मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करता बाहर, पहले हम ऐसे करते हैं कि इनिशियलाइज इसको यहीं पे करते हैं। अब देखो इसको आसान बना दिया मैंने बहुत ज़्यादा, 4 लाइन में कोड ऐसा लिख दिया कि मेरा 1 से लेके 100 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। आई विल प्रूव इट टू यू इन ए मिनट। समझो इस बात को। फर्स्ट पार्ट वाज इनिशियलाइजेशन, आपने इनिशियलाइज कर लिया एक नंबर को, फिर एक कंडीशन लगा दी, उसके बाद आपने उसको नंबर को बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंट लगा दिया, इंक्रीमेंट एट दिस पॉइंट। इसको आप इंक्रीमेंट के बजाय डिक्रीमेंट भी लगा सकते हो, माइनस माइनस भी लिख सकते थे। अगर आपने 100 से लेके 1 तक प्रिंट करवाना था तो ये वाली चीज़ 1 की बजाय 100 हो जाती। यहाँ पे हम कहते कि i ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ये वाली चीज़ को हम कहते i माइनस माइनस। समझो हो क्या रहा है। इनिशियली हमने ये चेक किया, ये सिर्फ एक ही बार चेक होगा। फॉर लूप शुरू हुआ, उसने चेक किया कि i की इनिशियल वैल्यू 1 है, वो अंदर नहीं आएगा अभी, अभी वो पहले कंडीशन चेक करेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब ये चीज ट्रू है इसलिए ये अंदर आएगा, अंदर आके उसको पता चला कि अच्छा मेरे को एक ही लाइन प्रिंट करवानी है, तो printf i was 1, उसने 1 को प्रिंट करवा दिया। फिर वो गया वापस यहाँ पे, ठीक है, उसने इस पॉइंट पे आके चेकिंग करी, i प्लस प्लस किया, i मेरा हो गया 2, क्योंकि 1 को 2 करना आसान था, प्लस प्लस करना मतलब +1 करना। सो नाउ इट विल अगेन गो टू द कंडीशन, कंडीशन चेक होगी, 2 is less than equal to 100, it is actually true. It will again come inside, it will again print the number, it will go back to the increment वाला part, ठीक है। तो इसको और आसान बना के I can say कि जब हम for loop चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, let's divide this in multiple sections। ये 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। उनके नाम अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये इनिशियलाइजेशन था 2 वाला और 3 वाला, यू नो, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट वगैरह। एंड दिस इज लेट इट बी द 4th सेक्शन जो इसके अंदर काम होना है, इसको मैंने नंबर 4 बोल दिया। तो सीक्वेंस क्या रहेगी, सीक्वेंस विल बी 1 से वो जाएगा 2 पे, 2 से वो जाएगा 4 पे, 4 भेजेगा उसको 3 पे, 3 दोबारा उसको भेजेगा 4 पे, फिर वो दोबारा अंदर आएगा, 3 भेजेगा उसको 2 पे, बिकॉज इंक्रीमेंट होने के बाद वो दोबारा से उसने कंडीशन चेक करना था। 3 ने भेजा 2 पे, 2 ने भेजा फिर से 4 पे, अगेन आफ्टर 4 3 2 4। अब ये 3 2 4 का लूप चलता रहेगा, 3 2 4 3 2 4 3 2 4 मल्टीपल टाइम्स, टिल ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू रहती है। आइडिया समझ में आया हुआ क्या है, सिर्फ हमारा 1 एक बार चला है, उसके बाद 243 243 243 हर बार चलता रहेगा टिल 2 रिमेन्स ट्रू। ये 243 बार बार आ रहा है, समझ आ रहा है। वो ऐसे करके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक मेरा 2 वाली चीज इज ट्रू। समझ आया हुआ क्या है। Yes, sir. ग्रेट, कमिंग बैक टू द कोड, लेट्स डू इट नाउ। मुझे यहाँ पे सम वगैरह बाद में देखेंगे। प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, ठीक है, बहुत सिंपल है। इंट आई करेंगे और फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप में किया i इक्वल टू 1, i लेस देन, सेमीकोलन आएगा यहाँ पे, i लेस देन इक्वल टू 100 है, अगर है तो अंदर जाएंगे, बाद में वो देखते हैं अंदर है क्या करना है, और i प्लस प्लस करते जाओ क्योंकि वो भी ज़रूरी है। यहाँ पे फॉर की बाउंड्री बना दो, printf I can write it as %d न्यू लाइन एंड i, हर बार वो जाएगा प्रिंट करवा देगा, ख़त्म कहानी। ये देखो यहाँ पे पूरी काउंटिंग आ गई है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके अप टू 100 तक की काउंटिंग आ गई है। ठीक है जी, समझ में आया हुआ क्या है? हमने 7-10 लाइन में काउंटिंग प्रिंट करवा दी 100 तक। इजी है ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड। नाउ वन मोर थिंग कैन बी डन। हो सकता है आपको बोला जाए प्रिंट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 बट द नंबर शुड बी इवन, प्रिंट द इवन नंबर्स। ठीक है, तो कैसे करोगे, कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, जल्दी से बताओ। इंक्रीमेंट चेंज कर देंगे। इंक्रीमेंट चेंज कर देंगे तो यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस की बजाय आई इक्वल आई प्लस 2 लिख दूँ, काम हो जाएगा? Yes, sir. नहीं होगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग 1 से कर रहा हूँ। अगर मैं 1 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मेरी 2-2 की जंप होने चाहिए, तो वो ऑड नंबर्स प्रिंट करवाएगा। देखो यहाँ पे सारे ऑड नंबर आएंगे अब, 1 3 5 7 9 11। ठीक है, 0 से start. तो स्टार्ट कर लो इसको इवन नंबर से। सपोज 2 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मैंने इवन से शुरू किया, अब मेरे सारे नंबर इवन आएंगे। ठीक है जी, इजी था? Yes. ग्रेट। समझ आ गया हुआ क्या है, कैसे हमने किया है, सब समझ आ गया? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रदर ऑफ फॉर लूप विच इज कॉल्ड व्हाइल लूप। ठीक है, बिल्कुल मिलता जुलता है। Am I audible? Yes, sir. ओके, सो इसमें व्हाइल लूप में क्या होता है, आपको इनिशियलाइज, जैसे हम उसमें फॉर लूप में कर रहे थे, फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज आपको पहले करना पड़ेगा, फिर आप व्हाइल लूप के अंदर आओगे और व्हाइल लूप में आप कंडीशन चेक करोगे। अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है देन यू विल गो एंड रन दिस थिंग। उसके बाद ये वापस यहाँ आएगा और आपकी कंडीशन दोबारा चेक होगी और वो फिर चलता रहेगा। तो इन ए वे फॉर लूप में क्या हो रहा था, 1 2 3 एंड 4 था, और उसकी जब एग्जीक्यूशन हो रही थी, एट एग्जीक्यूशन टाइम इट वाज बीइंग लाइक दिस 1 2 4 3 2 4 3 2 4 3 until 2 was true it was running। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, हमारा 1 हमने पहले करवा लिया, 2 हमारी ये कंडीशन है, 4 हम अंदर करवा लेंगे और जाते जाते 3 वाला काम भी अंदर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी काम वही हो रहा है, 1 2 4 3 2 4 3 चलेगा वैसे ही, लेकिन 4 और 3 अब हमारे व्हाइल लूप के अंदर आ गए हैं, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स कम बैक टू आवर कोडिंग विंडो। अगर मुझे सेम काम करवाना है, प्रिंट करवाना है नंबर 1 to 100 बट नाउ यूजिंग द व्हाइल लूप, तो मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज मैं इसको 1 ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, कि इनिशियलाइज 1 पे कर देते हैं और आई कैन राइट हियर व्हाइल my I is less than equal to 100, go ahead and print this number of I, और उसको जाते जाते प्लस करवाना है तो यहाँ पे मैं I प्लस प्लस लिख सकता हूँ। यस और नो? वो पहले I प्रिंट करेगा और वापस ऊपर जाने से पहले उसको प्लस प्लस करके जाएगा। तो नाउ इफ आई रन दिस कोड इट विल स्टिल गिव मी 1 to 100 नंबर काउंटिंग। समझ आ गया हुआ क्या है? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। यहाँ मैंने दो चीजें इकट्ठी करनी, देखो एक तो यहाँ पे चीज करी है मैंने यहाँ पे कि आई मेरा प्रिंट करवाएगा। प्लस प्लस का मतलब है बिकॉज दिस इज ए पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आई होप दिस हैज बीन कवर्ड इन योर क्लास। हैज दिस बीन टॉट इन योर क्लास दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई प्लस प्लस एंड प्लस प्लस ए? No, sir. No, sir. No, sir. Okay, so let me talk about it first. I plus 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 a I. So this is my post increment operator. This is my pre increment operator. ठीक है, मतलब क्या है, I plus plus
is equivalent to I equal to I plus 1. I plus I का मतलब भी सेम है, I equal to I plus 1. दोनों में डिफरेंस क्या है जब दोनों का काम सेम है? डिफरेंस है कि ये वाला बंदा है जो I प्लस प्लस वाला, वो पहले I को एज इट इज पास कर देगा कि तू जा काम कर अपना, और जाते जाते वो I को +1 करेगा अगली बार के लिए। ठीक है, मतलब क्या, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा जो मेरा कोड था, विल ब्रिंग दैट कोड, गिव मी 1 सेकेंड। क्या ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ वन नोट में? यस, आई कैन डू इट। Just 1 second. Okay, so this is the code. मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बोला कि मेरा इनिशियली I is equal to 1 है। ठीक है, दिस इज माई इनिशियलाइजेशन। बट देन आई ऑल्सो चेक्ड कि मेरा I लेस देन इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो इस केस में ट्रू था बिकॉज 1 इज लेस देन इक्वल टू 100। Then I came inside, I go ahead with the % D and I plus plus. I plus plus का मतलब यहाँ पे ये है that I will go ahead and print the value of I, लेकिन अगली लाइन में जाने से पहले, अगली लाइन यहाँ पे क्या है, अगली लाइन तो मेरी यही है कि वापस में ऊपर भेजा जा रहा है, क्योंकि अगली लाइन कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसको मे बी आई कैन से 1 सेकेंड, सो जाते जाते इसने क्या किया, आई तो प्रिंट करवा दिया था, पर यहाँ पहुंचने से पहले आई को +1 कर दिया। ठीक है, इधर इसने आई भेजा, पर ऊपर इसने आई को आई +1 करके भेजा। ये समझ में आया हुआ क्या यहाँ पे इतने हिस्से में? यस सर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस आई कर देता इंस्टेड ऑफ आई प्लस प्लस, अगर मैं प्लस प्लस आई कर देता, आउटपुट क्या आता? I is equals to 2 वो आगे भेजता है। 2 से स्टार्ट होती। काउंटिंग 2 से स्टार्ट होती। ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट आएगा अगर मैं प्लस प्लस आई लिखूं। अगर मैं आई प्लस प्लस लिखूंगा तो मेरी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी, फर्क सिर्फ इतना है। ठीक है जी, सर फिर वो 101 तक नहीं जाना चाहिए? ये तो इसको थोड़ी चेंज कर रहा है, सर इसको वो तो हमने जैसे ये 100 लेगा तो फिर उसमें एक प्लस प्लस करेगा तो 101 नहीं होना चाहिए? देखो, अ, अगर मैंने प्लस प्लस आई लिखा तो मैंने बोला कि आई इज लेस देन इक्वल टू 100 का कंडीशन है, और मैंने अंदर आया, मैं सपोज मेरा 99 था, आई 99 ने उसको ट्रू करा, अंदर आया, उसने 99 के टाइम पे 100 प्रिंट करवा दिया, इट विल गो बैक। ठीक है, अब 100 101 नहीं आएगा सर। तो 101 हो जाएगा ना, वो एक ऐड हो जाएगा। 100 इज लेस देन इक्वल टू 100, हाँ फिर 101 आएगा, यस। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा, देखते हैं इसको प्रूव करते हैं कि ये एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि वो प्लस प्रिंट करवाने के टाइम पे एक एक्स्ट्रा करवा के जा रहा है। सो इफ आई डू दिस, ठीक है, इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये 2 से लेके 101 तक आ रहा है। ठीक है, सर ये समझ नहीं आया 101 क्यों आया? क्योंकि वो प्रिंट करवाने के टाइम पे अब क्या हो रहा है, जब उसने चेक करा, वो तो उसने वहां पे 100 ही चेक करा जब 100 बन के ऊपर आया, पर जब 100 वाला अंदर आया, उसने प्रिंट करवाने के टाइम पे उसको 101 करके प्रिंट करवा दिया। ओके, ओके सर। हम्म, ओके देन, so I have one question to you now.
Let's say I have int a equal to 10, b equal to 10, okay, and I write this printf %d, %d, and %d a plus 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 b and a plus b. हाँ जी, इसका आउटपुट बताओ। 10, 11 और 100 10, 11 एंड 100 100 क्यों प्लस है यार? 20 एक 20, मिनट 21 21, 21 के 20, 21 होगा 21 होगा। Let's run it. It is 10, 11 and 20. Can anyone tell me the reason? सर क्योंकि जैसे वो a प्लस बी था तो a प्लस बी तो पहले से प्री डिफाइंड है तो उसमें ऐड वाला वो तो रन ही नहीं हुआ उसके लिए, तो वो तो Predefined 10 प्लस 10 ही होगा। predefined क्यों है यहाँ पे? तो सब हमने प्री जैसे डिफाइंड प्लस नहीं, सब प्री डिफाइंड नहीं, मेरा मतलब था जैसे हमने डिक्लेयर किया int इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 p इज इक्वल टू 10, तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो जो a प्लस b किया वो तो एक अलग से है ना, तो उसमें तो वो वाली बात नहीं चली। तो वो राइट टू लेफ्ट कंपाइल हो रहा है। राइट टू लेफ्ट कंपाइल। yes, that is the exact reason. ये जब कंपाइल होगा ना printf, तो printf के टाइम पे सबसे पहले राइट वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा, फिर ये वाला चलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे a प्लस बी कर दोगे ना, तो अब यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगी 21, 11 21 11 20। एंड 20। देखो, ओके सर, ओके। समझ आया? राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं हम। यस सर। यस, ओके, एनी डाउट इन दिस? सर आई ये होप नहीं समझ आया सर, 21 कैसे है? 21 इसलिए आया बिकॉज आई सेड कि मुझे राइट टू लेफ्ट आना है, ऐसे 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 आना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट आना है। स्पेशली जब हम ये तीनों की बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले राइट वाला चलेगा, सिर्फ सबसे पहले ये वाली कैलकुलेशन होगी, फिर ये वाली कैलकुलेशन होगी, फिर ये वाली कैलकुलेशन होगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? यस सर। तो जब फर्स्ट टाइम a प्लस बी हुआ तो आंसर 20 आया। 10 प्लस 10 इज इजी, राइट? 20। बट देन प्लस प्लस बी हुआ। प्लस प्लस बी का काम है कि वो पहले प्लस करता है फिर आगे भेजता है। ठीक है, यस सर। आगे भेजता मतलब यहाँ पे %d को एक बढ़ के मिला, तभी उसने 11 प्रिंट किया। बट देन जब थर्ड टाइम हमने ये रन किया a प्लस बी, जो थर्ड नंबर पे ये आया, इस टाइम पे b की वैल्यू 11 हो चुकी थी, इसलिए 10 प्लस 11 इज 21। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, गुड। Now let's make one small program. Sum of all the digits in a number. ठीक है, ये करना है। For example, the number is 153. तो आंसर आना चाहिए 9 because 1 plus 5 plus 3 is equal to 9. ठीक है, in this particular case. तो इसको 5 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। Question is clear. Can anyone tell me what should I do quickly? सर मैथमेटिकली करना पड़ेगा। करो, किसने रोका? स्कैन एफ करवाया नंबर। लेट्स से दिस इज माई %d, दिस इज माई नंबर m%n। चलो, नंबर इनपुट हो गया, अब बताओ क्या करें? सर लूप में मॉडुलस ऑपरेटर चला सकते हैं, टेंस वंस ऐसे प्लेसेस के हिसाब से। प्लेसेस के हिसाब से, सर यस। वाइल लूप चला सकते वाइल लूप भी चला सकते हैं और प्लेसेस के हिसाब से भी चलाना पड़ेगा। थिंकिंग बिल्कुल सही है। अगर आप इसको ब्रेक करो तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं दैट 153 mod 10 is equal to 3? yes or no? यस सर। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको 153 डिवाइड बाय 10 विल बी इक्वल टू 15। ठीक है, अब मुझे अपडेटेड नंबर के ऊपर सेम काम करना है। 15 mod 10 इक्वल टू 5, 15 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 1, 1 mod 10 इक्वल टू 1,
और 1 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 0। प्रोसेस समझ में आ रहा है? मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो मेरे मॉड में वैल्यू आते जाएंगे उसको मैं सम में डालता जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक सम इक्वल टू 0 रखूंगा नंबर, और यहाँ पे ये वाला नंबर जो आएगा मेरा आउटपुट, उसको मैं कर दूंगा सम इक्वल टू, या फिर सम प्लस इक्वल टू दिस थिंग। 0 में ये नंबर 3 ऐड हो जाएगा इस बार। समझ में आई ये वाली लाइन? और अगेन यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ प्लस इक्वल टू 15 मॉड 10, जो कि 5 ऐड कर देगा, तो 3 और 5 ऐड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं ये भी कर सकता हूँ सम प्लस इक्वल टू 1 मॉड 10। ये समझ में आ रहा है सबको हुआ क्या है? 3 Yes, sir. प्लस 5 प्लस 1 हो जाएगा। दैट्स द आंसर जो हमें चाहिए। तो मैं इस चीज को कोड में करने की कोशिश करता हूँ। करना क्या है, लेट्स define a number of sum equal to 0. Now I will run this program till my n is greater than 0। जब तक ये 0 नहीं हो जाता तब तक मुझे करना है ये, that sum plus equal to n mod 10 and n divided by 10, n equal to n by 10, और बाहर आके just print the sum। इसमें मैंने ओरिजिनल नंबर को उड़ा दिया, ओरिजिनल नंबर मेरा 0 हो जाएगा हर बार डिवाइड बाय 10 करने पे, बट डजेंट मैटर, मुझे सम चाहिए था, सम लेके हम चले जाएंगे। सो इट विल बी लाइक दिस, printf the sum is %d comma sum। आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू। मैंने पहले एग्जांपल देके समझा दिया। सेम चीज करी है, इनिशियली सम 0 रखा और सम में मैंने हर बार मॉड वाली चीज को ऐड करवा दिया। ठीक है, नंबर को डिवाइड बाय 10 कर दिया, जब तक वो बड़ा था 0 से तब तक काम होता रहा, उसके बाद वो बाहर आएगा लूप से और सम को प्रिंट करवा देगा। लेट्स रन दिस कोड। लेट्स से आई गिव द इनपुट एज 123, द सम इज 6। इफ आई इनपुट द नंबर एज दिस नंबर, द सम इज 19। 3 + 1 + 2 + 4 + 2 प्लस सब चलता रहेगा, नंबर जितना मर्जी छोटा है बड़ा है, इट वर्क्स। हाँ जी। सर हमने सम इक्वल टू 0 क्यों रखा है? क्योंकि मुझे ऐड करवाना था। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सम लिखता तो उसको बाय डिफॉल्ट कुछ गार्बेज वैल्यू मिलती। सो इसमें इन सी प्रोग्रामिंग देयर इज वन थिंग, दिस सम हियर एट दिस पॉइंट, इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करा है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ ए लोकल वेरिएबल। लोकल क्यों? क्योंकि ये एक मेन फंक्शन के अंदर है, तो इसकी एक लिमिट है, ये इस ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जब हम डिक्लेरेशन ऑफ ए लोकल वेरिएबल करते हैं तो उसका एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज वैल्यू मतलब, अब देखो जो ये सम है, जब मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा तो इस सम को सिर्फ डिक्लेयर किया था, इसको कोई वैल्यू नहीं मिली थी, डिफाइन नहीं किया था, तो उसको रैंडमली कोई जगह एलोकेट होगी इन रैम, और उस रैम में कुछ ना कुछ पड़ा होगा जो हमारे लिए कचरा है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कोई एपिसोड पड़ा है, कुछ पड़ा है जो आपने पैरेलली शुरू करा हुआ था, maybe you just completed that movie and you closed that window, but then वो रैम में पड़ी थी, उसका कुछ हिस्सा पड़ा था मूवी का। सो उस मूवी वाले पार्ट की जगह पे अगर इस प्रोग्राम को जगह मिल जाती है तो सम को उस जगह पे रैम में से कुछ मिलेगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अपनी कोई वैल्यू नहीं दी, तो वो गार्बेज में उस नंबर को ऐड करेगा, और यहाँ पे हो सकता है एरर आ जाए, हो सकता है कुछ वैल्यू गलत आ जाए। अब यहाँ पे 153 मैंने डाला, आंसर मेरा 9 आना चाहिए था, बट इट इज गिविंग आउट टू बी 32776, बिकॉज बैक एंड पे मेरी वो रैम में कचरा पड़ा था, सम में उसको इनिशियली कचरा मिला, उस कचरे में उसने 9 ऐड करके दे दिया। समझ में आया हुआ क्या है? यस सर। इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। इनिशियली उसको एक नंबर देना जरूरी है, इनिशियलाइज करना जरूरी है, फिर उसमें आप कुछ भी नंबर दोगे तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा। हो जाएगा ये कोड।
Now, can you do one thing for me? Can you use the same kind of logic and do the reverse of a number? 153 है, output 351 आना चाहिए. Can anyone do it for me? हाँ जी, बताओ. How will I do this code where I have 153 as the initial number? The output should be 351. क्या करेंगे? इस कोड में क्या चेंज करें? Let's copy this code first. Let's go back to the OneNote. ये अपना कोड है. This is the code that we have. Now I want to update this code in a way that I print the reverse of a number. सम नहीं करवाना, अब reverse of a number चाहिए. तो क्या मैं ये कर सकता हूँ that let's say I had 153. मैंने उसको जब mod 10 किया तो मेरे पास एक नंबर आया 3. ठीक है. तो जब मैंने उसको डिवाइड बाय 10 किया 15 आया. बिटवीन दिस थिंग एंड दिस थिंग, इन दोनों के बीच में मैं एक और चीज बीच में करवा दूं कि एक एक्स्ट्रा नंबर बनाना शुरू करूं. लेट्स से रिवर्स REV इक्वल टू 1, एक इनिशियल 1 नंबर ले लेते हैं. और मैं क्या करूं, रिवर्स नंबर में हर बार जो भी मेरा नंबर आएगा ये वाला, लेट्स से फर्स्ट टाइम 3 आया तो रिवर्स इनटू whatever my number has come, let's say यहाँ पे 3, तो 1 into 3 3 into 10. मैं पता क्या करना चाह रहा हूँ. मैं चाहता हूँ कि मैं हर बार जैसे 153 है तो मैं इस 3 को पहले निकाल लूँ, फिर 15 बचेगा, फिर 15 का जब 5 आएगा तो मैं इसको 3 into 10 plus 5 कर दूँ तो वो 35 बन जाएगा. सिमिलरली जब आखिरी बार 1 आएगा आई वांट टू मेक इट इनटू 10 एंड देन प्लस दिस नंबर. तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? इन दी एंड मेरा 351 आ ही जाएगा ऐसे करके. सर रिवर्स को 0 इनिशियलाइज कर देंगे, इनटू 10 कर देंगे, प्लस जो हमारा वैल्यू आएगी जैसे +3 कर देंगे. यस, ये वाली लाइन लिखी जा सकती है. आई कैन राइट इट एज रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस n mod 10. कैन आई डू दिस? फिर ठीक आ जाएगा ये. इनिशियली रिवर्स को हम 0 लेके चलते हैं अगर, तो 0 into 10 प्लस 3, क्योंकि फर्स्ट टाइम 153 में से 3 आएगा तो आंसर इज 3. जब अगली बार आएंगे तो 3 into 10 प्लस 5 बिकॉज सेकेंड टाइम 5 आएगा. तो ये वाला कोड ठीक है, हम ये वाली चीज कर सकते हैं. ये इतना रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10. So let's go back to the code and make the change. Suppose I was saying मुझे एक reverse of a number करना है, and for that I can do it as reverse equal to reverse into 10 reverse into 10 plus n mod 10. समझ में आ रहा हुआ क्या है? आसान है. The reverse of the number n is this. So what I can do is n comma reverse and the numbers will be given. but मैंने यहाँ पे destroy कर दिया था, उसकी बजाय मैं एक काम कर सकता हूँ. I can make a duplicate number which is m equal to n, और मैं destroy m को कर देता हूँ ना कि n को. तो मैं हर बार m को destroy करूँगा. m mod 10 m equal to m by 10. उससे क्या होगा, मेरा ओरिजिनल नंबर बचा रहेगा. एक डुप्लीकेट कॉपी बना के उसको हम डिलीट कर रहे हैं हर बार डिवाइड बाय 10 करके. सो लेट्स रन दिस कोड. If I give the number as 153, the output is 351. हो गया सॉल्व.
If you have a doubt in this, you can ask now. This is the right time. Do you have a doubt in this code? Duplicate number to destroy. If you people have a doubt in this code, this is the right time to ask. बताओ अगर किसी को कुछ दिक्कत है इसमें. So because we already knew that how can I do the sum of the digits in a number, वो वाली चीज आनी जरूरी है, तभी आप ये समझ पाओगे. No doubt? No, sir. No, sir. Okay. So let's see something else. Now let's discuss this conditional statements and loops. We have already seen this program to find if the given number is even or odd. Can we make this code quickly? The question is that electricity board charges the following rates. Minimum rate that is being charged is ₹50, irrespective of जितना मर्जी यूज करो. अगर मतलब इनिशियली नहीं यूज कर रहे, अगर आपने पूरा महीना कुछ नहीं चलाया, फिर भी आपका इतना ही आएगा, मतलब ₹50 तो बिल आएगा, चाहे आप घर पे नहीं हो, कुछ नहीं चला. बट देन up to 100 units, your cost is 1%, ₹1 per unit. And after that, from 100 to 300, the cost is 2 units, ₹2 per unit. 300 plus means ₹3 per unit. And if a total amount is more than 1000, additional surcharge of 15% GST कह लो इसको, तो 15% एक्स्ट्रा आपका टैक्स भी लगेगा. Code to read the user ID, name and number of units consumed by user and prints the user ID, name and charges. So we have to take care of all these things. Let's quickly make this code and wrap up the session then. Question देख लो ध्यान से. So I will put this in the chat box. Parallelly, you can also try putting it in the chat box. You can see it from there. I will do the coding now for this. Coming back to this thing, I can now do the coding. So it should be, I have to calculate the bill, electricity bill. ठीक है, electricity bill करना है. Okay, so now I have to take the inputs also. The inputs are user ID, name, and the number of units consumed by the user. Okay, let's do it. Let us put the user ID. Let user ID be a number. User ID be a number, and then the name. Name वाली चीज is a string, but let's do not write the name for now because string पे अभी मैंने discussion नहीं करी है. Let's just put the user ID and the number of units that has been used by that person. So let's do these two inputs. So scanf %d again,
user ID and units. These are the two inputs. Now I want to make sure that what is the minimum bill, what is the bill that will be there for that person. So let's calculate the charges. Let charges be int number and let charges be initially 0. या फिर हम ऐसे करते हैं कि इनिशियली 50 रुपीज़ का चार्ज तो रख ही देते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं भी यूज़ किया होगा, अगर चार्जेस में अपडेशन नहीं आएगा, स्टिल द चार्जेस विल बी 50 रुपीज़। तो इंट चार्जेस इक्वल टू 50 एज ए इनिशियल अमाउंट, एंड अगर वो अपडेट हो जाता है नंबर, वी विल टेक केयर ऑफ इट। वो हम एज इट इज अपडेट करवा के प्रिंट करवा देंगे। सो नाउ लेट्स मेक द कोड according to the requirements. So if the units are less than 100, cost is 1 rupee per unit. So if my units are less than 100, equal to 100, then in this case it will be print f. Now because I have to make sure that it has to be in the right boundaries, so the output will be the price. Let's say the charges are %d, and we can update the charges as charges into 1, ठीक है। but we will also have to take care of this thing कि भाई मेरे जो यूनिट्स हैं वो 50 से ज़्यादा हों, क्योंकि फिर ऐसे केस में तो वो उसको कम कर देगा। अगर 10 यूनिट ही यूज़ हुए तो वो 10 रुपये बोल देगा। सो आई विल हैव टू डू दिस थिंग इफ़ माई यूनिट्स आर ग्रेटर देन 50 एंड कैसे आएगा, ऐसे आएगा, एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है जी। प्रिंट एफ द चार्जेस, else if my units are up to 300, क्योंकि 100 से लेके 300 तक का it is 2 rupees per unit. So else if my units are less than equal to 300, and also it should be greater than 100, तो हम ये भी लिख ही देते हैं, units are greater than 100 and units are less than equal to 300. In that particular case, printf charges are %d. हाँ जी, what will be the charges in this case? It will be 100 plus charges minus 100 into 2. Yes or no? क्वेश्चन में डाउट है, हाँ हर जी, एक ब्रैकेट के अलग अलग चार्जेस हैं कि जब तक आप उस ब्रैकेट पे रिसीव पहुंचते नहीं है तब तक वो चार्ज रहेगा? डिमार्केशन है कि नहीं? देखो रियल वर्ल्ड में जैसे होता है, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, अगर आपके बहुत ज़्यादा यूनिट्स यूज़ कर रहे हो आप, तो वो ब्रैकेट वाइज ऐड ऑन होता चले जाता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता कि अगर आपने गलती से 5 यूनिट यूज़ कर दिए तो आपके 500 के 500 यूनिट का आप 3 रुपए के हिसाब से बिल भरोगे। इट विल बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। यस और नो? So we will divide it into parts. We will charge for the first 100 units ₹1. For 100 to 300 unit, we will put the charge as ₹2. 300 plus units के लिए we will charge ₹3. That will be the correct way to judge the electricity bill. Yes or no? So is it fine? इसमें कुछ सर और चेंज तो नहीं हमारी करना? फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में एरर नहीं है? चार्जेस इनटू 1 नहीं होना चाहिए अगर यूनिट ज्यादा हो गए तो? कैसे? जैसे ये चार्जेस इनटू 1, चार्जेस को हमने 50 इनिशियलाइज किया हुआ है, अगर यूनिट्स उसके मान लो 70 के yes पास हो गए। yes 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 yes
so it should be units into 1 ही होगा, सही बात है। so the charges, या तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे charges equal to units into 1, ठीक है। ब्रैकेट का फायदा लेते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। अब ठीक है, it will be charges, हो जाएगा ये। and similarly if I do it for this point, I will write charges as units अब 100 से ज़्यादा है तो फिर ये एज इट इज ये वाला रूल आ जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स माइनस 100 आएगा, मैं चार्जेस लिखता था वहाँ पे, तो इट विल बी 100 प्लस यूनिट्स माइनस 100 इंटू 2 एंड द printf will be charges only, हो जाएगा ये। अब ठीक है, अगेन else if अगर मेरे ज़्यादा हैं 300 से भी, then it will be units is greater than 300, तो हम कर सकते हैं इन दो स्टेटमेंट्स को ऐसे यूज, इट विल बी charge is equal to 100 plus 200 into 2 400 plus units minus 300 into 3। अब ठीक है ये। else अगर मेरा तीनों ब्रैकेट्स में नहीं आता, मतलब 50 से 100 में भी नहीं है, 100 से 300 में भी नहीं है, और 300 से ऊपर भी नहीं है, इसका मतलब वो 50 से कम है, राइट। तो उस केस में अप टू 50 वालों का वी कैन से else the charges, let's just print the charges, 50 rupees तो आना ही आना है बिल, तो I can say my charges will be, charges are % D अब इसमें मैंने एक चीज नहीं अभी करी, पहले इसको हम रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं यूजर आईडी वाली चीज भी छोड़ देता हूँ फिलहाल, वो आप अपने एंड पे करना, सिर्फ हम यूनिट्स के साथ ही खेलते हैं कि यूनिट्स कितने हैं और बिल कितना बन रहा है। लेट्स रन इट नाउ। 11th लाइन में सेमीकोलन नहीं लगाया, यस, बाकी हर जगह है, ठीक है। So now if I give the input of units 410, so the charges are 830। कैसे? पहले 100 का 100 रुपये, 100 से 300 का 200 इंटू 2 400, 500 तो यही हो गया, एंड देन 110 यूनिट का 3 रुपये के हिसाब से 330, सो 330 प्लस 500 इज 830। इजी है ये, हो जाएगा। अगर मैं 50 से कम यूनिट्स भरता हूँ, लेट्स से 40 यूनिट्स, तो मेरा आंसर फिर भी 50 रुपीज़ आ रहा है। So according to me the code is fine, but we have not still taken this condition into the consideration कि अगर 1000 से ज़्यादा बिल है तो 15% एक्स्ट्रा लगेगा, तो वो वाली चीज़ नहीं करी। उसमें आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे इन दोनों लाइन के बीच में आप लिख दो इफ चार्जेस ग्रेटर देन 1000 then the final answer will be 1.15 into charges। we can do it like this। देखो ये वाले केस में तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर कम यूनिट्स हैं तो फिर सर इतना बिल आपकी नहीं वो आएगा। स्क्रीन शेयर्ड नहीं। ओह ओके, 1 second। so now let's say if my units are less, इस केस में तो मेरा 1000 रुपये बिल आ ही नहीं सकता। अगर मेरे 300 यूनिट भी हैं तो उसमें मैक्सिमम 500 बिल आएगा। तो I have to put a condition in this one only, if my charges are greater than 1000,
then printf charges into 1.15 क्योंकि 15% एक्स्ट्रा लगाना था। अगर वो 1000 से कम है या up to 1000 है, then go ahead and print the charges as it is. तो इसको रन करके देखते हैं। 1000 पे बिल कैसे बनेगा? 3 करना है तो 166 into 3 is 500, तो 300 प्लस 466 यूनिट्स पे 1000 पे बिल है। 470 यूनिट्स डालते हैं। अब क्या हो गया? ओके, तो इसको हमें करना पड़ेगा because we are multiplying it by 1.15, it is a floating number, so maybe we can do it like this. We can put a float here, %d, in this case it will be %f. अच्छा उल्टा कर दिया। Just 1 second. Now it should be fine. So if I give the input as 470, the charges are this. You can verify on your end. First 300 units bill will be 500. After that 170 into 3 is 510. तो 1010 into 1.15 करेंगे अगर आप, तो आपको 1161.5 बिल आएगा। Is this thing clear? It was a bit long code, but we went step by step. So I hope it will be fine with you all. So if I put a value of 466, then the charges are 998. मैंने हर बार ये R डाल दिया extra. So our calculation was right. If my units are 466, the bill is less than 1000. अगर मैंने उसको 467 कर दिया, तो bill will be more than 1000 and we have to pay a lot because then 15% will be extra. Will this thing be, I mean, you can do this thing right now. What we can do is I can put this code in the chat box and you people can copy paste it on your end and work with it. Or I can also do one thing more. I will copy this code. I will put it on ID on website. ID on website is again a C compiler, and it generally helps us to generate one code. So if I run this now, I will have to give the input of, let's say, 466. I will run this code and the output will come out to be 998. And this is a short link in front of you now. So I will put this short link so that you people can get the code as it is. So I'm putting this in the chat box now. You can copy this link with you so that you can open this link and go ahead to that code and understand this on your end. हो जाएगा? I think it was easy. It was a bit long, but it was easy to understand. I hope this thing will be easy for you. You can download it from here. You can also click download and get the copy of the code as it is. Okay, then that's all for today. I will end the session. If you have doubts, you can email me. Otherwise, I don't think there will be any doubt. One small announcement. Next week, yeah, I mean, it's fine because there was some other group's lab on Wednesday. So announcement was for them, not for you. Okay, that's all for today. Thank you. I'm ending the session now. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.
Yeah, bye. Thank you, sir.